Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Now, some of you wants to know which one is to be picked, RRB Office Assistant or IBPS Clerk. Now, in both cases, have its own merits and demerits. So you have to take decision based on your circumstances. RRBs are normally concentrated in within a state. Some states have only one RRB, some states have more than one RRB. So sometime few districts of one state are there in RRB. In case of Andhra and Telangana, it is so because bifurcation happened later on. So there may be some RRB where some branches may be Telangana and some branches may be Andhra. But mostly RRBs are state level banks and they are confined to few districts in that state or entire state. So if you are posted in RRB, that means your posting will be within the state. But as these are small banks, the number of branches are quite less as compared to a IBPS clerk banks. Those are nationalized banks and bigger banks. So the promotion prospects are comparatively less. As far as postings are concerned, transfers are concerned, it is more comfortable because once you get your own state, you remain within the state or within those districts wherever these branches are there. Because inter-bank transfers are not permitted in RRB. But by chance, if you are posted in another state, then there is no chance of your transfer. So you have to decide where you got the posting. In IBPS clerk, being a bigger bank, in some banks promotion is very fast. So the advantage in IBPS clerk is promotion. Then facilities are also more to the IBPS clerk as compared to RRB clerk. So that can be one factor that can decide. So usually candidates prefer IBPS clerk over RRB clerk. But some candidates they prefer RRB clerk over IBPS clerk because the most of the time the underlying factor is posting and posting near to hometown. So you can decide according to your own decision. If you are career cautious, you want to move further, if you want to be aggressive in taking responsibilities, then IBPS clerk may provide faster opportunities to grow. So because case to case things will uh, be different. So it is very difficult to say whether this is inferior or this is superior or that is inferior or that is superior. The more important thing is what is suitable to you. If you feel that working in a RRB suits you due to comparatively lower workload, you can go for it. If you are looking for faster career progression, then you can go for IBPS clerk. So the you can say opinion is divided. There is no clear cut. You can say you can say कि this is better or that is better. This is my view. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आप में से कईयों ने पूछा कि सर IBPS क्लर्क और RRB क्लर्क के बारे में भी बात करिए. देखो जब दोनों में हमें कोई चुनाव करना है तो उसमें आप ये देखिए कि जो RRBs हैं नॉर्मली विद इन स्टेट है. कुछ में पूरे स्टेट में एक ही RRB है, कुछ में एक से अधिक RRB है. तो उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर है विद एक्सेप्शन आंध्रा और तेलंगाना में, क्योंकि बाद में बाइफिकेशन हुआ. तो किसी RRB में ऐसा भी है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में पड़ते हैं और कुछ डिस्ट्रिक्ट आंध्रा में पड़ते हैं. अदरवाइज विद इन दी स्टेट ही हैं ये बैंक्स. तो जो प्रेजेंस है वो लिमिटेड है, लिमिटेड एरिया में है. तो अगर आपको पोस्टिंग मिल गई है अपने नेटिव
स्टेट में, तो उसमें कंफर्टेबल रहते हैं। जब आप आरआरबी में रहते हैं तो आपको पोस्टिंग आसपास मिल जाती है। आईबीपीएस क्लर्क में भी स्टेट लेवल पे ही सिलेक्शंस होती हैं, स्टेट लेवल में ही पोस्टिंग होती है। आईबीपीएस क्लर्क में आरआरबी क्लर्क के मुकाबले जो एक एडवांटेज है वो है प्रमोशंस का, क्योंकि जो आईबीपीएस क्लर्क के बैंक्स हैं, नेशनलाइज बैंक्स जो हैं, वो बड़े हैं साइज़ के अंदर, उसमें ग्रोथ भी फास्टर है, तो वो तेज़ी से ग्रो करते हैं, तो वहाँ प्रमोशन तेज है। प्रमोशन तेज होने से काफ़ी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कई फैसिलिटीज़ भी क्लैरिकल कैडर में हायर हैं जो आईबीपीएस क्लर्क के बैंक्स हैं आरआरबी के मुकाबले, वो भी एक फैक्टर होता है। पर कई लोगों को वर्कलोड के हिसाब से अगर देखें तो कहीं ये माना जाता है कि आरआरबी में कंपैरेटिवली काफ़ी ब्रांचेज में वर्कलोड कम है नेशनलाइज बैंक्स के मुकाबले, तो वो भी कई बार एक फैक्टर होता है डिटर्मिनेशन का। पर बहुत ज़्यादा इसके अंदर हम ये कहें कि ये बेटर है और वो बेटर नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर लगभग सिमिलरिटीज़ हैं और पर्सनल चॉइस के हिसाब से इसके अंदर मैटर करता है कि आपको आरआरबी में रहना है या आईबीपीएस क्लर्क में रहना है। हाँ, जो लोग ज़्यादा कैरियर कॉन्शियस हैं, जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, बिगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं, उनके लिए आईबीपीएस क्लर्क बेटर चॉइस होती है कि वो उसमें जाएं। यहाँ पर हमने ऑलरेडी काफ़ी डिस्कशंस किए हैं, ठीक है। तो अब कुछ लोग कहेंगे एसबीआई जूनियर एसोसिएट से भी इसमें कंपैरिजन कर लो। जब हम आईबीपीएस क्लर्क कह रहे हैं या एसबीआई जूनियर एसोसिएट कह रहे हैं, वो एक ही कैटेगरी में आप मान लीजिए, वो बड़े बैंक हैं और आरआरबी छोटे बैंक हैं, तो वही चीज़ें उस पर भी लागू होंगी। काफ़ी लोग आरआरबी के मुकाबले स्टेट बैंक को प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर कैडर सेम है तो नेचुरल है कि जो बिगर ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए लोग ऑप्ट करते हैं, उसको प्रेफरेंस देते हैं। तो ये बहुत ही व्यक्तिगत सा इसके अंदर डिसीजन है। इसके अंदर कोई क्लियर कट हम ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा है या ये अच्छा है। मतलब ये बड़ा मुश्किल है हर चीज़ के में। इसमें जो सैलरी लगभग सेम है, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। आईबीपीएस क्लर्क में कई फैसिलिटी कई बैंकों में दी हुई हैं क्लर्क को, जो आरआरबीज़ में नहीं होंगी। अगर अधिकांश लोग जो प्रमोशन वो रखेंगे बेस, वहाँ पे आईबीपीएस क्लर्क बेटर रहेगा आपके लिए आरआरबी के मुकाबले प्रमोशन एंगल से, ठीक है। तो बाकी मैं इसमें बहुत ज़्यादा क्योंकि आरआरबीज़ में बहुत सारे बैंक्स हैं, तो इसलिए मतलब एक एक करके इसको बहुत क्लैरिटी से कहना बहुत मुश्किल है कि क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि कहाँ पे आप रहते हैं, क्या आपको सूट करता है, वो आप अपने हिसाब से उसमें देखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।